Good morning, everyone. Good morning. First of all, I would like to thank the Lord who brought me here among you. And thanks to Pastor Sandeep who gave me this golden opportunity to speak with you. And thanks to all of you, you're going to hear me on the policy of tolerance. So without wasting the time, I must start with the chapter John, chapter 19, verse 30. Please open a page with me. John chapter 19, verse 30. Actually, it is really too difficult to deliver the speech in front of the audience, a number of more than 100 people. So, when I was sitting there, actually, I was thinking that my superiors were delivering their speech was very brilliant and very superb. So, actually, putting my hand on my heart, all is well, all is well, all is well. I was developing my confidence level. No, me too. Actually, I can do this too. So, please open a chapter 19, verse 30. जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। Is this some kind of homework? No. This is not any kind of homework. What kind of, actually, pura hua means accomplishment. So what kind of accomplishment is there talking about in the Bible? If Jesus said, yes, pura hua, it means he had a target. It means he was on a mission. Pura hua. He had a target, he was on a mission which he accomplished. So let me explain you about that mission very briefly. So once again open a page with me. Luke chapter 4 verse 16. Luke chapter 4 verse 16. फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। I have already told you about that. Pura hua means accomplishment. So what kind of accomplishment is there talking about in the Bible? Now we can see here Luke chapter 4 verse 16. It means he had a target, he was on a mission which he accomplished on the cross. He came to accomplish those prophecies what were made about him. Those rules what were put on the people. Those sacrifices what were mentioned in the Old Testament which he accomplished on the cross very peacefully. I must preach you through both example, spiritual and personal experience. When I was not a Christian, I was abandoned in old rituals. I was really brutally frustrated of useless traditions. I used to visit to temple on every Monday to offer mixed milk and water.
On Tuesday, I used to offer sweets. Same as I have to perform all the customs forcefully on each and every day. Thus, I wasted my lot of money. I was wasting my time also. I was wasting my time also. I wasted my lot of money, but the situation was still same. I was totally tired and wanted to get rid of useless traditions, rituals, customs, those terrible things which were scaring me. So after being a Christian, I'm aware about the sacrifice which was done by Jesus on the cross. I got the salvation, so I just don't need to perform any kind of useless traditions, rituals, and any kind of customs. Hallelujah. Now I know the value, exactly value of cross, exactly value of the sacrifices, exactly value the holy blood of Jesus. On other side, we can see in the Old Testament, people were instructed to follow, to offer different sacrifices for their different crimes, sins, and offenses. Because without sacrificing the blood, there was no chance to receiving the forgiveness of the sins and offenses. People were also totally rude, and I think they were very scared about some poor people could not afford all kind of the sacrifices. In Old Testament we can see there. Everybody, almost people could not afford that, no? So, after giving the sacrifice, after Jesus giving the sacrifice, we can see here, people are free to survive their life fearless, very peacefully. Because everybody just got the salvation. Everyone. Not only a single person, everyone. Because Jesus paid all the cost. Jesus paid all the cost on the cross in order to our sins. There is an inspirational story about two brothers. An elder brother was very kind and very innocent person, while the younger one was very cruel, very mischievous, and very criminal type person. He always made the mistakes, and his elder brother had to repay for his crime every time. He always suggested his younger brother, please don't do this. But he was addicted of making the mistakes. One day he committed a crime, he committed a murder, and rushed away from the spot, and came to his elder brother with blood on his shirt, and begged her to save him, because cops were after him. Elder brother decided to help him, and he exchanged the shirts. At once, cops spotted there. And they arrested the elder brother because unfortunately they could not recognize the face of prime suspect. Just because of bloodshed on the shirt. And hanged him till death as the sentence. Hanged him. So moral of the story is that elder brother sacrificed his life to save his younger brother's life. Now this is his responsibility to maintain all the goodness and be an example of the humanity, and always remember to his elder brother's sacrifice.
Jesus Christ is the elder brother. We are the younger one, and the shirts are the deeds. Our deeds are the shirts as example in this story. What do you think so about you, about the people, if we are Christian? You are ordinary person. If you call yourself you are ordinary person, then the people are foolish. I already told you that he had a target, he was on a mission. That's why he said pura hua. It means pura hua is not an ordinary statement. This is the sixth statement which was given by Jesus on the cross. This is not an ordinary statement, pura hua. It means he had a target, he was on a mission. So it means if we are Christian, we call ourselves Christian, it means we are not an ordinary person. We all are the warriors of the Lord. It means we are the soldiers in the army of the Lord. Yes. We are the soldiers, we are the warrior, not we are the ordinary person. If you call yourself ordinary person, then just go out and just stay out of this Christianity. Christianity is not only the word, Christianity is the mission. That's why we call ourselves missionaries. Yes. We are the missionaries, we are the warriors, we are the soldiers. Yes. We have to continue this fight that Jesus Christ left that time. जो मिशन वो छोड़ करके गया था वो पूरा करके गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो पूरा होना बाकी है। क्या पूरी तरीके से सुसमाचार प्रचार हर एक काम तक पहुंच चुका है? अगर पहुंच चुका है तो हमें ये आज्ञा क्यों दी गई है? बहुत कुछ है जो अधूरा है और पूरा होना बाकी है, और वो पूरा आपको और हमें करना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल द गुडनेस। यीशु मसीह कहां दिखेगा? आपको क्या लगता है? पीपल विल फाइंड जीसस क्राइस्ट समवेयर इन द चर्च? नो माय डियर, पीपल विल फाइंड जीसस क्राइस्ट इन यू, इन योर बिहेवियर, इन योर कैरेक्टर। तो आप नहीं दिखेगा, आपकी हरकतों में दिखेगा, आपकी जज्बातों में दिखेगा, आपके इमोशंस में दिखेगा, वो इधर उधर नहीं दिखेगा। कोई कहे इधर देखो उधर देखो, जीसस यहाँ है जीसस वहां है, नहीं, बातों में मत आ जाना किसी की भी। वो हमारे कैरेक्टर में दिखता है। अगर मैं बता दूं एक भी व्यक्ति बैकस्लाइड शब्द देखो, बैकस्लाइड कहीं पर भी बाइबल में तो नहीं है। देयर इज, आई थिंक देयर इज नो बैकस्लाइड वर्ड इन द बाइबल। Backslide is not mentioned in the Old Testament, in the New Testament book. I don't think so. That there is backslide word in the Bible. Backslide नहीं है। फिर backslide आया कहाँ से? इसका जन्म हुआ कहाँ से? जब backslide का जिक्र पूरी बाइबल में कहीं नहीं है, तो backslide शब्द आ कहाँ से गया? ये ना इंसानों की हरकतों की वजह से backslide शब्द आ गया। हरकतें उलझुल हम करते हैं, बचाते एक आत्मा है और भटका देते 10 आत्माएं। पूरा हो गया इससे टारगेट। आप इतना टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा टारगेट हमारा माइनस में जा रहा है। एक आत्मा बचाओ, 10 भटका दो अपनी हरकतों से, अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से। मैं बता रहा हूं सारी जिंदगी आप लगे रहो, टारगेट पूरा नहीं होगा। टारगेट है जो पूरा करना है। हम वॉरियर हैं, हम सोल्जर, हम ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। वो तो बाकी लोग भी हैं, तो फिर हम क्या है? अगर ऑर्डिनरी बन जाता तो फिर क्रिश्चियनिटी में आने की क्या जरूरत थी बॉस? हम वहीं ठीक थे जहां पहले थे। We had our own place. Why we are coming into the Christianity? Why we are joining this community? Just because of to accomplish the target, to accomplish the mission. Yes. We have a burden. आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? बहुत सारा काम है करने के लिए, आपको पता है? हम कितने आराम से बैठे हैं, सुबह उठते हैं, जॉब पे जाना है, बिजनेस जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, खाना पीना है, बच्चे पालना है, ये करना है, वो करना है, सो जाना है। That's it. पूरे दिन में 1-2 बार ठीक है, कभी मिलेगा महीने में, हफ्ते में 1-2 बार चांस समाचार प्रचार करने का कर दिया। हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। फसल पूरी तरीके से उग चुकी है, काटने वाले मजदूर अभी थोड़े हैं, वो चाहिए। मजदूर मीन्स लेबर, वॉरियर। ये युद्ध है जिस पर आप और हम हैं। कांटे की नोक पर रखे आप और हम, तलवार की नोक पर खड़े इस वक्त आप और हम। एक हमारी छोटी सी चूक और शैतान फाड़ के खा जाएगा हमें। वो एक मोटी की तलाश में है। Dear,
कोई भी ऐसी गलती नहीं कि जो बैकस्लाइड नहीं है बाइबल में, उसका जन्म हो चुका है, तो ये ठीक नहीं है कि हमारा कोई भी कैरेक्टर, बिहेवियर, हमारा कोई भी एक्ट एक आत्मा बचाता है लेकिन 10 को चोट या ठोकर पहुंचती है, ठोकर का कारण ना बने। प्रभु प्रभु कहने वाले लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक पूरी नहीं होती है that you joining your church within a week and you praying only 3 times or 2 times, I think, that you reading, you analyzing your Bible 1 or 2 hours in a day. अभी बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए, इतने आराम से मत बैठो प्लीज, काम पर लगो, फसल पकी हुई है। क्या हम अभी भी वही है कि जिन्हें अभी भी सिर्फ दूध की जरूरत है? अगर हम तैयार हैं तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? Why have we waiting? And what are we waiting for? So please काम पर लगो। हम लोग मिशन पर हैं, हम सभी लोग स्पाई हैं, एजेंट हैं गॉड के, हम वॉरियर हैं, हम सोल्जर्स हैं उसकी आर्मी के। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, and we are the only responsible candidates in this world, and we have to accomplish the target, we have to accomplish and we have to finish this mission. हमारा दुश्मन सिर्फ एक है, शैतान। वो कभी हमारे मिशन को पूरा नहीं होने देगा, लेकिन क्या हम उसकी हेल्प करेंगे? हमें अपने मिशन को पूरा करना है। हम सभी टाइगर हैं। So Jesus Christ paid all the cost on the cross in order to our sins. काफी ज्यादा काम उसने कर दिया, बचा कुचा काम हमारे लिए छोड़ा है, काम एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं। So he accomplished, this is the mission he accomplished on the cross. So I think by which you can understand, ऑलरेडी आप लोग काफी समझदार हैं, ठीक है, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, प्लीज उस जिम्मेदारियों को समझे। एंड दिस इज अ मिशन व्हिच ही accomplished on the target. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. That वर्ष में आप लोगों को अंग्रेजी सुनना समझना आ जाएगी। It's a matter of few weeks probably। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश पे प्रचार नहीं करते, अगर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ट्रांसलेट करें, लेकिन आज सब कुछ अपने आप हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बढ़ाना शुरू करा और एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू करा, तो उसने समझ ली बहुत सारी भाषाएं समझ ली, उसने समझ ली बहुत सारी भाषाएं बोलने की। तो परमेश्वर से मांगे और वो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपका ज्यादातर समय इस बात में जाता है कि आप हिंदी में एक दूसरे से वार्तालाप करें। और हम किसी और को देखते हैं, हमको लगता है यार ये तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और किसी बाहर से कोई अगर अंग्रेज आता है तो आपको लगता है बाप रे अंग्रेजी बात कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे बात करता है। अगर आप उस माहौल में होंगे और वही सुनेंगे, वही बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो सब आएगा। कितने सारे लोगों ने बाइबल पढ़ना सीखा 50 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में। जिनको बाइबल पढ़ना तो क्या, जिनको कुछ भी नहीं पढ़ना आता, खुदा ने अपने आप सिखाना शुरू करा, बच्चों की तरह उन्होंने मेहनत करी और चीजें आ गई, और वो किसी भी भाषा के लिए होता है। राइट, तो इसलिए प्लीज खुश रहिए, अपनी खुशी कभी मत खो दीजिए। हम चाहते हैं वर्षिप टीम आ जाए और हम एक अच्छे गीत में आगे लेकर करें। ये वक्त होगा अपने हस्बैंड परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। पहले ऑपनिंग सॉन्ग लेना, पहले ऑपनिंग सॉन्ग लेना या किसी को ऑपनिंग सॉन्ग लेना। लकड़ी पे लटका आसरी है ज़िंदगी
तेरे को जिंदगी कोई बनाना लगी तेरे को जिंदगी हम मौके की प्रार्थना में चलेंगे आनंद से भाभी के साथ है आइए हम अपने सवालों को जुटाएं। शुक्र है खुदा का धन्यवाद करते हैं खुदा इस दिन के लिए खुदा क्या हमें आगे है खुदा और सच में खुदा जितने भी कलामों को हमने सुना खुदा वो सब हमारे हृदय को छूने का खुदा आज तो खुदा जो ये दिन है खुदा इस दिन को खुदा हम इसी के साथ में खुदा बल्कि आनंद के साथ खुदाने का खुदा सच में खुदा सौंपने के लिए जितने भी लोगों ने दिया खुदा इनका अपना हाथ बनाते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं फिर आपको बहुत बर्थडे आप बैठ सकते हैं। देखिए मैंने क्या बदमाशी करी, मैंने सारे पाठशालों से बोला कि 5-5 मिनट कम बोलना है ताकि वो सारे 5-5 मिनट पहले तो 6 कलाम के 5-5 मिनट मेरे हो गए 30 मिनट के
नहीं, मैं ऐसे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आखिरी कलमा आइए निकालते हैं। आप जानते हैं कलाम की बहुत सारी बातें बहुत अजीब है। जब पास्टर तरुण आए, पास्टर तरुण ने एक बात बताई कि आपको नया नियम और पुराने नियम को समझना जरूरी है। नया नियम पुराना नियम नए नियम की परछाई है। पुराना नियम नए नियम की परछाई है। मैं जानबूझ के बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नया नियम पुराने नियम की परछाई है, पुराना नियम नए नियम की परछाई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बातें, बहुत सारे कलाम, बाप बेटे का जिक्र, रिश्तों का जिक्र, रिश्तों का ताना बाना, हर चीज में खूबसूरत तरीके से हर बात को संजोया गया है। आप जानते हैं अगर आप मत्ती, मरकुस और लूका साथ में नहीं पढ़ रहे, यहुन्ना थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है तो उसको साथ में पढ़ने से थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मत्ती, मरकुस और लूका को साथ पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आपके लिए एक पिक्चर कंप्लीट करता है, वो आपको एक 360 डिग्री व्यू देता है, ये जरूरी है। बहुत सारी कहानियां मत्ती में है, वही मरकुस में है, वही लूका में है। आपको पता है ये आखिरी कलमा सिर्फ लूका में, ये आखिरी कलमे के ये अल्फाज ये परमेश्वर कहता है। हम पढ़ सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे आ रहा है कि लाइट आएगी तो आपको नजर नहीं आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 बाब उसकी 44, 45 और 46 वर्स, 45, 46 और 45 से पहले वाली 44, ये तो ये 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। ये अकेली मैं कुछ लिख रहा था, मैंने मजाक करा, मैंने बोला ओनली डॉक्टर ल्यूक हैड दिस रिकॉर्डेड। और ये जो खुदा खादम था, ये अकेले जनाब थे जिन्होंने इस आखिरी कलमे की बात को रिकॉर्ड करा। अगर आप बहुत सारे मत्ती, मरकुस तो पढ़ेंगे, समझ में आएगा खुदा ने अपनी रूह को खुदा के हाथों में, खुदा ने अपने यीशु मसीह को, अब हमें यीशु मसीह को खुदा बोलना पड़ेगा, तो यीशु मसीह ने अपने बाप के हाथों में अपनी रूह को सौंपा। आपको पता है कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको, 3-4 बातें उसका रंग खत्म करेंगे। पुराने नियम में खुदा का ओहदा फर्क था, सिर्फ नए नियम में ये बाप बेटे वाली बातें आना शुरू हुई। आप पुराना नियम उठा के देख लीजिए, बेटा बाप वाली बात इस तरह से नहीं आई थी। ही वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑलमाइटी गॉड इन दी ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नामे में उसका रुतबा बहुत फर्क था, लेकिन नए नियम में एक रिश्ता आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है। आप बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अगर आ रहा है, आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ लें ताकि सब लोग साथ में कर सकें। और लगभग हाँ जी, 2 पैर से तीसरे पैर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। आपको सूरज का उजाला जाता रहा पहर, और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। दादी ने इस बात को, मिसेस एक्यो डेविड ने इस बात को छुआ। ये 6 घंटों का सफर था यीशु मसीह के लिए, सिर्फ 3 घंटे नहीं थे। बहुत सारी जगहों पे बात होती है 12 से 3, और हमने बात करी लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे में हम खत्म कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ये 6 घंटे का सफर था। आपको पता है 6 घंटे में जान नहीं निकल सकती। दादी ने इस बात को भी अगर आपने ध्यान से सुना है तो बहुत सारे पास्टर ने बहुत सारी खूबसूरत बातें बोली। पास्टर तरुण ने एक काम को अंजाम दिया जिसको एक्सेजेसिस कहते हैं। उन्होंने नए नियम से पुराने नियम की एक आयत जोड़ दी। वो बातें जो यीशु मसीह बोल रहा था वो स्टाम्स में ऑलरेडी हुई थी। इसको एक्सेजेसिस कहते हैं, और ये थियोलॉजिकली बहुत करेक्ट है। ये डॉक्टर का बहुत परफेक्ट था जो उन्होंने करा। ये आपको समझना जरूरी है कि पासदार ने करा, इसको समझने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कलाम को दे रहे हैं। उसके बाद दादी ने एक और बात को जिक्र करा, बहुत सारे लोग वहां पे ऑलरेडी 2 दिन से टंगे हुए थे। उसके बाद भी अगर आप कलाम पढ़े और अगर इतिहास को पढ़े, क्रॉनिकल्स उठाएं, तो आपको समझ में आएगा कि 3 घंटे 6 घंटे में जान नहीं जाती। लोग 6-6 दिन लटके रहते थे। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आए ये देखने के लिए, मर गया 6 घंटे में। वो सिर्फ घुटने तोड़ने आए थे ना, लेकिन फुटबॉल हुआ वो नहीं तोड़ पाए। और कलाम की एक और बात, एक और नबूवत जो पहले कही गई थी वो पूरी हुई कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इस कलमे में 3 छोटी बातें, यीशु मसीह ने उसको बाप कहा। आज जो कलमे हुए, सबसे पहले कलमे में उसने क्या बोला? हे पिता, हे पिता। उसके बाद एक और कलमा आया जो पासदार ने बोला, और बोला मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। डिफरेंस है कहां पर खुदा आया और कहां पर बाप आया।
बहुत बहुत ज्यादा गहरी बात है ना, तो बहुत देर से बात कर सकते हैं कि क्यों बाप और क्यों पिता। हमने आज कलाम जब हमने इबादत शुरू करी तो हमने गीत को लिया जो गुड फ्राइडे का गीत नहीं है। एक्चुअली गीत बात गुड फ्राइडे की नहीं, बात है कि आप किस भाव से चलते हैं, बात है कि आप किस तरीके से यीशु मसीह के साथ चलते हैं। ये समझना जरूरी है। यानी कि हम एक रिश्ते की बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी मां से बोला, इस बच्चे को कैंसर था, एक ऐसी इलनेस थी जिसको बोला था कि ये मर जाएगा, और उसने अपनी मां से बोला कि मम्मा ये मरना कैसा होता है। जो कलमा मेरे पास आया, मैं मुस्कुराया, क्योंकि कलमा जो है गलत चॉइस आ गई मेरे पास, बट सारे पास में अपने अपने कलमे ले चुके थे, तो मैं मुस्कुराया और मैं सुनाते रहा था, मैं बोला हो। तो मैं कहा ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आपको मैं कहानी से समझाना चाहता हूं। एक बच्चा बीमार था, उसे मालूम था कि मरना कैसा होता है। एक्सोडिस द्वारा पाठ कंप्लीट करते हैं, यानी कि भजन संहिता 31 में जो पास्टर धर्म ने करा, भजन संहिता 31 की 5वीं आयत निकाली है। यही सेम बात पुराने नियम में लिखी हुई है। यही सेम बात पुराने नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह पे लिखी हुई है। आप निकाल के पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। दिस साम्स चैप्टर 31 उसकी 5th वर्स, भजन संहिता 31 बात उसकी 5वीं आयत। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और हे यहोवा, हे सत्याधीश्वर, जी, तूने मुझे मोह लेकर मुक्त किया। बस मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तो इसकी जब एक बच्चा अपनी मां से बोलता है कि मां मरना कैसा होता है, राइट, तो जाहिर सी बात है हर मां की आंखें नम होंगी। उसकी मां परेशान हो गई और उसकी मां ने थोड़ी देर दुआ करी, आंखों को बंद करा और सोचा कि मैं इसे कैसे समझाऊं। तो उसने एक बात समझा। उसने बोला कि तुम्हें पता बेटा, जब तुम छोटे थे ना, जब तुम छोटे थे और बहुत थके होते थे, तो कभी कभी तुम पापा मम्मा के कमरे में आ जाते थे। पापा मम्मा कमरे में आके उनकी गोदी में बैठे बोलते थे मुझे सुला दो, बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान हूं मैं, थक गई हूं। एना अक्सर ऐसे करती है, एना थोड़ा बड़ा हो गया है। एना अक्सर ऐसे करती है कि अगर हमें कहीं सोना होता है तो एना कहती नहीं, मुझे तो आपके पास सोना है, मुझे तो आपके पास आना है। और ये हर रात कुछ ना कुछ होता है, कभी उसको दादी के पास सोना होता है, कभी मेरे पास सोना होता है, ये हमेशा होता है। तो उस माँ ने भी उस बच्चे को बताया, बेटा तुम छोटे थे ना तो तुम थके होते थे, तुम हमारे पास आते थे, वो तुम्हारा कमरा नहीं था, ध्यान सुनिएगा, लेकिन तुम हमारे पास आते थे और हम तुमको सुलाते थे। लेकिन जब तुम सुबह उठते थे तो कहां उठते थे? उसने बोला अपने बिस्तर पे। उसने बोला अपने बिस्तर पे। यीशु मसीह के साथ ये वाला रिश्ता, ये वाला इस तरीके से उसमें सोना, राइट। वो बच्चा अपने बिस्तर पे नहीं सोया, लेकिन जब वो उठा तो वो अपने बिस्तर पे था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज किसी ने अपने मजबूत हाथों से उस बच्चे को सोने के बाद उठाया और उसकी जगह बदली। सबने किया होगा ना, सबने कभी ना कभी बच्चे ऐसा वाला काम करना। कोई बच्चे गाड़ी में सो जाते हैं, उनकी जगह नहीं होती, और हम पे निर्भर करता है। अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब पास्टर रवि और मैं जा रहे हैं, अब बच्चे सो गए हमारी गाड़ी में, या ट्यूशन में जाते हैं, अक्सर हम ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे सो गए, तो उसको दो तरीके हैं। या तो ट्यूशन में उठ जाए, अबे यार ये यहां सो गए, कोई काम ही नहीं है, ये तो यहीं सो गए। एक तरीका तो ये है ना, आशीष और एना को कहीं भी सो सकते हैं, कभी भी कुछ भी, मतलब, और एग्जैक्टली यही हुआ। ओह सॉरी, ये तो नाजिक है, मेरा फोन कभी नहीं बजता, आज में थोड़ा नेटवर्क आ रहा है, हमारे यीशु मसीह है, यहाँ पे नेटवर्क उनके थ्रू आ रहा है, ये तरंगे बरंगे चल रही है बहुत सारी। हालेलुया। कैसे कमाल हुआ, कभी कॉल ऐसे नहीं आता। एनीवेज, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब बच्चा उस जगह पे सोया है, उस बच्चे की जगह नहीं है, राइट। अब एज अ बाप या एज अ मां हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम अगले 15 मिनट तक बात ही कर लो,
अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम कुड़ना शुरू कर दें, अरे यार कैसा बच्चा है यार, इसको तो तरीका ही नहीं है सोने का, इसको तो बैठने का तरीका नहीं है, राइट? ये तरीका है ना, ये तरीका है ना, है ना? बच्चों को या तो बोलते यार क्या तरीका है यार, तुम थके जाते हो यार, कहीं भी तो जाते हो। अगर यीशु मसीह ये करना शुरू करता, अगर यीशु मसीह ये करना शुरू करता, मैं गाड़ी के ऊपर ऐसे हाथ रख के सो गया खड़े खड़े कर, मैं बात कर रहा था, मैं गाड़ी के ऊपर हाथ रखा ऐसे सो गया। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, जब यीशु मसीह ने इस काम को अंजाम दिया, सोना सबको है ना, सब हर कोई सोएगा, हर कोई आराम करता है, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं, एक बड़ी अच्छी सी एक प्रेयर है, वो प्रेयर भी इस तरह से है कि परमेश्वर जब मैं रात को सोऊं तो मेरे प्राणों को अपने हिफाजत में रखना, अगर मेरी आंखें खुलने से पहले मेरे प्राण चले जाए तो मैं ये उम्मीद रखता हूं, ये मिन्नत करता हूं कि वो प्राण तेरी हिफाजत में हो, और जब मैं उठूं तो तेरे घर में हूं। यीशु मसीह ने, और मैं सिर्फ इसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, यीशु मसीह ने एग्जैक्टली यही करा कि पिता मैं अपनी रूह, अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। अपने आप को उसको सौंपना सीखिए। या तो अपनी जिंदगी के हर मुकाम पे गलत चीजों को गलत तरीके से सोचिए, हर बात में यू कैन पास जजमेंट इन एवरीथिंग, आप हर चीज का न्याय कर सकते हैं, आप हर चीज में कोई गलत बात बोल सकते हैं, या हर चीज को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर मैं यूं देखना शुरू करूं तो मेरा ये पर्सपेक्टिव खत्म है, मुझे तो ये दिखाई देगा, और अगर मैं ऐसे घूम जाऊं तो बिल्कुल ही अलग है। हम लोग अगर तो यीशु मसीह की बात था, हम लोग, और ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, इसलिए हमने इस गाने से शुरुआत करी आज की बात की कि ये रिश्ता काफी है मुझे। आइए दुआ करते हैं। खुदा हम उम्मीद करते हैं कि हम जब सोएं, हम में से हर किसी को सोना है, हम ये मिन्नत करते हैं कि हम जब सोए तो, अगर वो हमारी आखिरी नींद तो हम तेरे पास उठेंगे, हम अपने बाप के घर में उठेंगे, ऐसे बाप के घर में जो हर बात में हमारी निंदा नहीं करता, ऐसे बाप के घर में परमेश्वर जो हर बात में हमारी कमजोरी नहीं ढूंढता। क्योंकि तू है परमेश्वर, इसलिए हमारी उम्मीद है। तूने जिंदगी दी है जब हम लोग मौत के काबू थे। यू गिव अस लाइफ व्हेन वी एक्चुअली डिजर्व डेथ। तेरी मोहब्बत पूर्ण है खुदा, और हम सिर्फ अचंबा कर सकते हैं, और योर लव इज कंप्लीट एंड वी कैन ओनली मार्वल एट इट। खुदावन आज किसी की मदद कर, जिसकी मदद तू करना चाहता है, कि वो इस प्यार को समझता है, जब वो अपनी चीजों से मुंह फेरते हैं। खुदावन माफी आसमानी है, फॉरगिवनेस इज डिवाइन, तूने वो करके दिखाया। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, जिनकी कलीसियाएं हैं, जो खादिम हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको जिंदगी जीना सिखा। मे दे लिव लाइफ टू द फुलेस्ट लॉर्ड। लोगों के दिलों में इस वक्त सुकून दे, जो
अपने दिल में कुछ रखे बैठे हैं किसी के खिलाफ, शायद माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, संगी साथी एक दूसरे के लिए। इस शुभ शुक्रवार में, इस गुड फ्राइडे में अगर हम ये नहीं कर सकते खुदा, तो तेरे बेटे बेटियां कहलाने के लायक। खुदावंद जब हमारा समय आए, मे वी डाई वेल, हम लोग सही से मर सके। तेरे सामर्थ्य के नाम में इस दुआ को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, सुने और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। ईस्टर की सुबह हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे। ईस्टर की सुबह, इनफैक्ट ईस्टर वाले दिन हम लोगों ने लंच का इंतजाम करा है। आज हमने कुछ स्नैक्स का इंतजाम करा है, और तो प्लीज उस बात से खफा मत होइएगा, लेकिन कुछ स्नैक्स का इंतजाम है। ईस्टर पे डेफिनेटली लंच है। पास्टर रवि यहाँ पर होंगे ईस्टर पे, और राइट, और बाकी पासवानों के लिए खुला आमंत्रण है। प्लीज वी आर वन फैमिली। अगर आप समय निकाल पाते हैं तो आप जरूर से सब एक साथ हो सकते हैं। अभी पूरी टीम ने कुछ इंतजाम करा है खाने का, कुछ ड्रिंक्स है, कुछ खाने के लिए है, तो प्लीज उसमें जरूर से हिस्सा लेंगे। सारे पासवानों से मिल सकते हैं। 4 पासवान हैं आज यहाँ पर, और चारों पासवानों से मिले, सबसे बात करें, उनके बारे में जाने, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये जरूर है तो अपने लिए समय निकालें। साथ में जो कुछ है छोटा मोटा प्लीज उसमें हिस्सा लें। और राइट, तो कल को इबादत, कल एक इबादत है, कल शाम की इबादत है निशांत के यहाँ पे, निशांत और सिमी के यहाँ पर, यानी कि आरबीआई कॉलोनी में। आपने आरबीआई कॉलोनी, ज्यादातर लोगों ने अपने आरबीआई कॉलोनी देखी है, कभी ना कभी आप लोग गए हैं। आरबीआई कॉलोनी में शालीमार में कल शाम की इबादत है, तो उस इबादत का ध्यान रखें। समय 6:30 बजे का ही है। हमारी शाम की सारी इबादतें हम लोग शाम को 6:30 बजे ही करते हैं, ताकि लोग ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से वापस आ सकें। तो कल की इबादत को ध्यान रखेंगे। संडे सुबह हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे, उस दिन लंच का इंतजाम होगा, आज कुछ स्नैक्स का इंतजाम है। इसके अलावा कुछ दुआएं, अगर आपका जन्मदिन है आज से अगले 2 दिन में, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, या शादी की सालगिरह है आज से लेकर अगले 2 दिन, ऐसे इस टाइम पे शादियां नहीं होती है। तो आइए अपने स्थानों पे खड़े हो। आइए तो सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को आसमान की ओर। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहेगी।